Good morning, sir. Good morning, class. So, in the previous lecture, we have discussed about predicate logic, where we are talking about how to use universal and existential quantifiers in order to translate any statement. Okay. So for that, here we are, logical equivalences involving quantifiers. In this one, we are saying that two statements with predicates and quantifiers are called to be as logically equivalent if they have the same truth value. This we have discussed for the context of propositional logic also. Whenever we have to say that two propositions or two propositional statements are logically equivalent, then we have to determine whether they have the same truth value. Okay, so therefore here also we are saying the same thing, that is, whenever they are having the same truth value, then we can say it will be logically equivalent. And for this we have to use this sign, three horizontal lines. So this is used to represent logical equivalence. Okay, now let us say the next thing, that is how to negate any quantified expression. Okay. Earlier, we have talked about how to find out the negation. And for negation, we have simply used that we can apply the De Morgan's law to find out the negated statement. For example, if there is a proposition P implies Q, the negation we have defined to be as, आपको याद होगा, P implies Q है. अगर हमें इसका निगेशन फाइंड आउट करना है, ये एक प्रोपोजिशन है, तो हमने क्या किया था, पहले इम्प्लीकेशन का ये निगेशन एलिमिनेट किया, एंड फॉर दैट वी हैव रिटन negation of P disjunction Q, and then we have to simplify this negation using De Morgan's law, and therefore now it will be equivalent to negation of negation P, and then conjunction, and then negation of Q. Now then this negation of negation P will become P itself. So therefore P conjunction negation of Q. So by this way we can find out the negation of any implication statement. Now here we are going to talk about how to find out negation of quantified statement. Okay. If there is a predicate written with some quantifiers, it can be universal quantification or it can be existential quantification. Then how to find out this negation? Okay. So for this we are saying the first thing you must know that negation of for all x is equivalent to for some x. In the same way, negation for some x is equivalent to for all x. तो जब भी हम निगेशन करते हैं, ये जो क्वांटिफायर्स है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक, तो ये स्टेटमेंट है आपका, लेट अस से एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. ओके, सो विदाउट प्रेडिकेट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द निगेशन स्टेटमेंट फॉर दिस? बिना प्रोपोजिशन, प्रेडिकेट या क्वांटिफिकेशन यूज किए हुए, इन जनरल टेल मी what is the negated statement of this? Every student in your class has not taken a course in calculus. Please repeat. Every student in your class has not taken a course in calculus. Do you seem that it has the meaning just negation of the given statement? Sir, no There one is a student statement. in your class has taken a course in calculus. Yes, you are saying no one student in your class has taken a course in calculus. Yes, sir. Yes, sir. Okay, anyone else?
अगर ये सिंपल एक स्टेटमेंट है एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो इसका अगर हम निगेशन का मतलब होता है अपोजिट, है ना। तो मतलब ये ट्रू है तो वो फॉल्स होना चाहिए, और वो फॉल्स है, वो ट्रू है तो ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये एक स्टेटमेंट है तो इसका निगेशन आपने बताया कि नो वन या नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। ओके, लेट मी डू दिस बाय क्वांटिफिकेशन, है ना। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम होता है कि हम डोमेन स्पेसिफाई करें। तो अगर हम डोमेन में यूज करें, लेट अस से कि हम डोमेन ले रहे हैं कि x जो है इट डिनोट्स स्टूडेंट इन योर क्लास, स्टूडेंट इन योर क्लास। तो उस केस में हमें एक प्रेडिकेट लेना पड़ेगा। लेट अस से सी स्टैंड्स फॉर कैलकुलस, तो कैलकुलस के लिए सी एक्स ले लिया मान लो, ठीक है। और सी एक्स डिनोट एक्स हैज टेकन a course in calculus. As I have told you, predicate means nothing. It means simply property or attribute. तो जो भी हम ऑब्जेक्ट या जो भी हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट इन योर क्लास। इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्स हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन one predicate here. And now the formula for this statement will be, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो it will be for all x cx, for each x has taken a course in calculus, या for each student in your class x has taken a course in calculus, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट निगेशन, तो हमें इस पूरे का नोट करना होगा, और ये नॉट जब सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा, इस पे नॉट लगेगा तो ये एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नॉट जब इस पे लगेगा तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ सी एक्स। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वन। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस सेंटेंस। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप सेंटेंस बताइए क्या होगा। सर वही जो पहले बोला था, एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज नॉट। First thing, there is existential quantifier, so that's why we cannot use every student. Using this formula, tell me what is the sentence. X denote student in your class, CX denote X has taken a course in calculus. The formula is for some X, negation of CX. So can we start like some student in your Yes, obviously you have to start with some. Okay, the sentence will be some student in your class has not taken a course in calculus. सिंपल सा मीनिंग है। आप बताओ ये सेंटेंस फॉल्स कब होगा, जो आपको गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स कब होगा। आपने कहा कि एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, और मैं एक स्टूडेंट आपके क्लास में बता दूं जिसने कोर्स नहीं लिया है, देन दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। Yes, sir. ओके, तो दैट्स वाई द निगेशन विल बी, मैंने वही बताया कि जो स्टेटमेंट होता है या निगेशन होता है, नॉट की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है तो नॉट फॉल्स होगा, और अगर नॉट ट्रू है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, यही तो होता है। तो ड्यू टू दैट, इफ वी आर सेइंग दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, इसका मतलब ये हो गया, इसका निगेशन होना चाहिए सम स्टूडेंट इन योर क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। अगर हम एक स्टूडेंट भी ऐसा बता सकें जिसने कैलकुलस नहीं लिया है, तो देन इट विल बिकम द गिवन सेंटेंस टू बी फॉल्स। इट विल लीड टू दिस सेंटेंस टू बी फॉल्स, एंड दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ निगेशन, कि स्टेटमेंट ट्रू हो तो निगेशन फॉल्स हो, स्टेटमेंट फॉल्स हो तो निगेशन ट्रू हो। ओके, तो दैट्स व्हाई द आंसर मस्ट बी सम स्टूडेंट इन योर क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस।
Got the meaning? And how we have obtained? So we have obtained by this one. Some for some x, x has not taken a course in calculus. So therefore we can say some student in your class has not taken a course in calculus. Got the point? Okay. So moving ahead, ये यहाँ पे slide में available है. So this one and the negation will be. तो एक चीज और है, जब भी हमें किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन लिखना हो, इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसमें ऐड कर दो इट इज नॉट द केस दैट. तो whenever the sentence is P, we can say negation of P will be it is not the case that P, है ना? तो therefore आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, it is not the case that every student in your class has taken a course in calculus, and that will be simplified as there is a student in your class who has not taken a course in calculus, and that can also be written as some student in your class has not taken a course in calculus. Okay, so that's what it's. तो वो नो वाला जो हम लोगों ने बोला था, नो एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज टेकन, ये सही नहीं होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा, अगर आप बोलते हो कि नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, इसका मतलब ये हो गया कि एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. बोथ स्टेटमेंट्स आर सिमिलर. इफ यू आर सेइंग नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, it means we are saying that every student in your class has not taken a course in calculus. Agreed? Yes, sir. Because if we are saying no student in your class has taken a course in calculus, यानी कि क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कैलकुलस लिया है. इसका मतलब क्या हो गया कि क्लास के सभी बच्चे ने कैलकुलस नहीं लिया है. That means okay. अपोजिट तो हो गया ना? हाँ, तो अपोजिट नहीं हुआ ना. अपोजिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप बोलते हो कि एक स्टेटमेंट सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, आपने का स्टेटमेंट ये था कि ये स्टेटमेंट है, ये एक्स की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसको आप फॉल्स कैसे प्रूफ करोगे? क्या आप हर एक वैल्यू के लिए फॉल्स करोगे उसको? नो या सर. किसी एक वैल्यू के लिए फॉल्स करोगे? ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सम. इसलिए मैंने पहली ही स्टेटमेंट बोला कि जब भी हम फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज करते हैं तो उसका निगेशन होता है फॉर सम. ठीक, and that's why we are saying that some student in your class has not taken a course in calculus. आप जो पहला स्टेटमेंट बोल रहे हो उसका मतलब है all student in your class has not taken a course in calculus. ठीक है, तो इसलिए ये आपका ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर एक ने भी नहीं लिया है तब भी फॉल्स हो जाएगा. इट इज नॉट कंपल्सरी, सॉरी, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वी हैव टू find it out for everyone. Okay, so that's why the statement will be this one. इसलिए मैंने बताया कि for all का निगेशन हम यूज कर रहे हैं for some. ओके, तो ये आपका ये हो गया. ये मैंने पहले ही फॉर्मूला सबसे पहले आपको ये बताया कि अगर नॉट लगा है क्वांटिफाइड के आगे, तो जैसा हमने बताया था आपको कि इस निगेशन के प्रेसिडेंस की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जब हम इसको इनसाइड करेंगे, अगर क्वांटिफायर से आगे निगेशन लगा हुआ है तो वो निगेशन जो होता है ये निगेशन जो होता है वो पूरे सेंटेंस पे अप्लाई होता है. तो इसलिए ये जब नॉट अंदर होगा, जैसे आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, तो डिमॉर्गन्स लॉ में हम नॉट को अंदर करते हैं ना, तो ऐसे ही ये नॉट जब अंदर होता है क्वांटिफायर से, तो ये क्वांटिफायर चेंज हो जाता है. तो ये सम में चेंज हो गया और ये निगेशन ऑफ पी एक्स हो गया. ठीक है, तो ड्यू टू दैट वी हैव रिटन दिस वन. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस. ये एक दूसरा प्रॉब्लम है. अब मैंने जो आपको बोला, ठीक है, कि ये इसका निगेशन होगा, ठीक है, आप इसको अब दूसरी तरह से समझ सकते हो. मान लो अब ये आपका प्रॉब्लम है कि हमें इसका निगेशन फाइंड आउट करना है. देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस.
ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लें तो क्या ट्रांसलेशन होगा? अगर हम सेम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो x डिनोट स्टूडेंट इन द क्लास और सी एक्स डिनोट x हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉर सम x सी एक्स। अच्छा चलो, पहले आप बिना फॉर्मूला के बताओ इसका निगेशन क्या होना चाहिए। देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। इसका निगेशन क्या होगा? No student in the class has taken a course in calculus. यस आपने बोला कि एक स्टूडेंट है जिसने कैलकुलस लिया है। इसका नॉट क्या होगा? यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कैलकुलस लिया हो। सिंपल, अगर हम लेमैन मीनिंग में समझें तो इसका मतलब क्या है? आपने अगर एक स्टेटमेंट दिया कि एक स्टूडेंट है जिसने कैलकुलस लिया है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगा? कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने कैलकुलस लिया हो, यानी कि फॉर ऑल निगेशन ऑफ सी एक्स। और ये ऐसे भी होगा क्योंकि हम जब इसका नॉट करेंगे तो ये नॉट जब अप्लाई होगा इस पे, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स negation of cx, and that's why the sentence will be no student in this class has taken a course in calculus। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, every student in the class has not taken a course in calculus। ठीक है। Yes, sir. सो बाय दिस, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो। तो ये आपका इट इज नॉट द केस, या तो आप ऐसे यूज कर लो या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इन दिस क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। ठीक है। और इट इज यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, वो इसलिए है क्योंकि हमने ये आपको फॉर्मूला बताया ड्यू टू दिस। तो जब भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के आगे निगेशन लगा होता है, पहला हम क्वांटिफायर को चेंज करते हैं और उसके बाद जो उसका आर्गुमेंट होता है उस पूरे पे हम अप्लाई करते हैं निगेशन को। ठीक। तो यहाँ निगेशन क्वांटिफाइड के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूला पे हमें नोट करना है। ठीक है। तो इसका नोट किया तो ये फॉर ऑल हो गया, इसका नोट किया तो निगेशन ऑफ क्यूबेक्स हो गया। And therefore the corresponding statement will be every student in this class has not taken a course in calculus। Okay, तो by this way we can summarize it कि अगर हमें इसका निगेशन करना है तो ये होगा। तो इसका मतलब for every x px is false and false कब होगा? तो there is an x for which px is true। तो ये हम निगेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही ये जो है ये ट्रू कब होगा? तो देयर इज एन एक्स फॉर विच पी एक्स इज फॉल्स, और ये फॉल्स कब होगा? तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। ठीक है। तो आप देखो जहां पे हमने ट्रू वर्ड किया यूज किया था वहां पे हम फॉल्स वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप इस टेबल को पिछले टेबल से कंपेयर करोगे जिसमें हमने एग्जिस्टेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का टेबल बताया था, तो उसमें केवल एक चेंज है, जहां पे ट्रू था वहां फॉल्स हो गया, जहां फॉल्स था वहां ट्रू हो गया। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं निगेशन से। ठीक है। नाउ फाइंड द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। No, any politician is honest. तो यहाँ पे जो है पहली बात कि ये है, अगर हम डोमेन पॉलिटिशियन का ले रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि एक्स इज ऑनेस्ट। ओके, वेयर एक्स डिनोट पॉलिटिशियंस। ओके, तो अगर हम एक्स को कोई पर्सन ले रहे हैं तो हमें दो प्रेडिकेट यूज करने पड़ेंगे, एक ऑनेस्ट और दूसरा पॉलिटिशियन। लेकिन अगर हम एक्स को पॉलिटिशियन ले रहे हैं तो उस केस में हमें एक प्रेडिकेट यूज करना पड़ेगा, ऑनेस्ट, क्योंकि प्रेडिकेट का सिंपल मीनिंग होता है प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट। ठीक है। तो अगर आपका डोमेन सेट ऑफ पर्सन का है तो उस पर्सन की दो प्रॉपर्टी है कि पर्सन पॉलिटिशियन है और पर्सन ऑनेस्ट है। और अगर आपका डोमेन जो है पॉलिटिशियन का है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑनेस्ट है। तो इसलिए उस केस में हम एक प्रेडिकेट यूज करेंगे। ठीक है। तो देयरफॉर इसका फॉर्मूला हो गया देयर एग्जिस्ट एक्स
hx, wherever hx denote x is honest. तो there exist x hx या some x hx, इसलिए इसका निगेशन क्या हो जाएगा? तो फॉर ऑल x निगेशन ऑफ hx, यानी कि एवरी पॉलिटिशियन इज नॉट ऑनेस्ट, या आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, नो पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट. ओके, तो दिस वन एंड देयरफॉर दिस वन, एवरी पॉलिटिशियन इज नॉट ऑनेस्ट, यानी कि एवरी पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट. ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स. एक और मैंने प्रॉब्लम लिया है, ऑल अमेरिकन्स ईट चीज बर्गर्स. तो अगेन यहाँ पे भी अगर हम डोमेन अमेरिकन्स पर्सन का या अमेरिकन्स पीपल का ले रहे हैं, तो उस केस में एक प्रेडिकेट है इसमें, दैट इज एक्स ईट चीज बर्गर्स. लेकिन अगर हम डोमेन पर्सन का ले रहे हैं तो उस केस में दो प्रेडिकेट आपको यूज करना पड़ेगा, एक्स इज अमेरिकन एंड एक्स ईट चीज बर्गर. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो यहाँ पे सी एक्स लिया हमने, एक्स ईट चीज बर्गर, वेयर एक्स डिनोट अमेरिकन्स. तो इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा फॉर ऑल एक्स सी एक्स, एंड इसलिए इसका निगेशन क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट एक्स निगेशन ऑफ सी एक्स, यानी कि सेंटेंस क्या होगा? सम अमेरिकन्स डू नॉट ईट चीजबर्गर या डज नॉट ईट, जो भी आपका है ना. तो हियर फॉर द करस्पॉन्डिंग सेंटेंस विल बी दिस वन, सम अमेरिकन्स डज नॉट ईट चीजबर्गर्स. गॉट द पॉइंट? क्योंकि फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूला को रीड हम कैसे करेंगे? फॉर सम एक्स निगेशन ऑफ सी, निगेशन ऑफ सी एक्स, और इसका मतलब हो गया सम एक्स का मतलब यहां अमेरिकन से है, तो इसलिए सम अमेरिकन डू नॉट ईट चीज बर्गर. ओके, तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस. इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज एन अमेरिकन हु डज नॉट ईट चीज बर्गर. ठीक, ये है. ठीक, तो आप इसको देख लेना. नाउ ये तो आप कर लोगे, दिस वन. मैंने अभी बताया आपको कि जब भी निगेशन होता है तो निगेशन पूरे पे अप्लाई होता है. अगर क्वांटिफायर के पहले निगेशन लगा है बिना ब्रैकेट का, तो वो निगेशन जो है पूरे सेंटेंस पे अप्लाई होता है. ठीक, तो इसलिए यहाँ पे नॉट लगाने का मतलब ये है कि ये तो पहले चेंज होगा क्वांटिफाइड में, और फिर इसका नॉट होगा, और इसका नॉट आप जानते हो क्या होता है? पी एक्स कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू एक्स. तो इसलिए ये हो गया. ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है. अब इसके बाद आता है कि जो हमने पहले पढ़ा रूल्स ऑफ इन्फरेंस. तो रूल्स ऑफ इन्फरेंस में मैंने आपको 8 रूल बताए थे, आपको याद होगा. सबसे पहला था एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन. ठीक, नहीं नहीं सॉरी, एडिशन था, सिंप्लीफिकेशन था. ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूज किया था मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, देन डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, और क्या था एक आपका, दैट इज लास्ट वाले का नाम था रिजोल्यूशन. यस, ओके. तो ये आपके इन्फरेंस रूल में हमने यूज किए थे. ठीक है, अब जब हम इन्फरेंस रूल की बात करते हैं तो ये इन्फरेंस रूल जो है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के साथ भी यूज हो सकता है. ठीक है, अब तक हमने जो इन्फरेंस रूल यूज किया है वो बिना क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के, यानी कि प्रोपोजिशन के साथ यूज किया है. लेकिन इन इन्फरेंस रूल को हम प्रेडिकेट के साथ भी यूज कर सकते हैं. उसका रीजन ये है कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम प्रेडिकेट में वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो वो प्रेडिकेट प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए जब भी हमें इन्फरेंस रूल अप्लाई करना हो तो पहला काम ये होगा कि प्रेडिकेट को हम प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करें. और प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस करना होता है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
इंस्टेंसिएशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टेंसिएशन, ठीक है, क्योंकि हम एक इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, एक वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस डोमेन का हम एक इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी एज इंस्टेंसिएशन। अब जो आपने क्वांटिफायर यूज किया है वो दो तरीके का होगा, या तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा। इसलिए जब हम प्रोपोजिशन प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू यूज वन ऑफ दिस टू रूल्स, आइदर यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्वांटिफायर फॉर्मूला में कौन सा यूज कर रहे हैं। जो प्रेडिकेट है जिसको हमें प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना है, उसमें क्वांटिफायर कौन सा यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ये रूल क्या है, उस रूल का नाम क्या होगा, वेदर वी आर यूजिंग यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन। और इसी का रिवर्स प्रोसेस है कि प्रोपोजिशन से हम प्रेडिकेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि जो एट्रीब्यूट है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रेडिकेट लिया एक्स इज गुड, ठीक है, और एक्स डोमेन है पीपल का, उस पीपल में हमने एक नाम ले लिया राहुल, उसका एक इंस्टेंस हो गया राहुल, ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो गया राहुल इज गुड। तो राहुल इज गुड क्या है? प्रोपोजिशन। लेकिन जब आप एक्स इज गुड बोल रहे हो वो क्या है? प्रेडिकेट, वेयर एक्स डिनोट द सेट ऑफ पीपल और द डोमेन ऑफ पीपल। ओके, तो इसी प्रोसेस को मैंने बताया कि अगर हम वेरिएबल को एक इंस्टेंस यानी कि एक वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो वो प्रोपोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा क्वांटिफायर है, हम यहाँ पे रूल बोल रहे हैं यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तब, और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन जब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स कोई प्रेडिकेट गिवन है तो उसको हमने पी सी में कन्वर्ट कर लिया, वेयर सी इज वन इंस्टेंस ऑफ डोमेन ऑफ एक्स। एक्स के डोमेन में से एक इंस्टेंस है सी और उसके लिए हमने पी सी लिख लिया। जैसे अभी मैंने बोला कि मान लो आपका एक सेंटेंस है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स डिनोट एक्स इज गुड, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया क्या? ऑल पीपल आर गुड। अब इसमें से हमने एक इंस्टेंस ले लिया राहुल, तो आपका सेंटेंस हो गया राहुल इज गुड। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को हमने प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर लिया। और इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है जनरलाइजेशन, कि हम जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइज कितने के लिए कर रहे हैं? सभी वैल्यू के लिए या कुछ वैल्यू के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टू बी एज यूनिवर्सल जनरलाइजेशन एंड एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि यूनिवर्सल हमें जनरलाइजेशन करना है या एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन करना है? तो उसके लिए सिंपल सा रूल है। वो रूल ये है कि अगर पूरे आर्गुमेंट में सभी जगह यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन यूज हो रहा है तो उससे हम जो जनरलाइज करेंगे वो हमेशा यूनिवर्सल जनरलाइजेशन होगा। लेकिन पूरे आर्गुमेंट में अगर एक भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन आपने यूज किया है तो उस केस में हम जनरलाइजेशन जब करेंगे तो वो एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन होगा। यस, गॉट दिस? यस सर। सिंपल सा रूल है। अगर पूरे आर्गुमेंट में, एक आर्गुमेंट में नंबर ऑफ प्रीमाइसेस होंगे, सभी प्रीमाइसेस में अगर कहीं भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन यूज नहीं हो रहा है तो उस केस में जब आप जनरलाइजेशन यूज करते हो तो आपको यूनिवर्सल जनरलाइजेशन यूज करना है। लेकिन अगर किसी भी एक भी आर्गुमेंट में आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज कर रहे हो तो उस केस में जनरलाइजेशन में आपको एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन ही यूज करना है। सिंपल सा लॉजिक इसका ये भी है, जैसे मान लो आपने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, क्योंकि प्रेडिकेट का मतलब प्रॉपर्टी ही होता है। आपने कहा एक प्रॉपर्टी जो है सभी के लिए ट्रू है, दूसरी प्रॉपर्टी सभी के लिए ट्रू है, तीसरी प्रॉपर्टी सभी के लिए ट्रू है, तो इन तीनों से जो जनरलाइज रिजल्ट होगा वो भी तो सभी के लिए होगा ना। यस सर। लेकिन अगर यही मान लो कि आपने कहा दो प्रॉपर्टी सभी के लिए ट्रू है, एक प्रॉपर्टी कुछ के लिए ट्रू है,
तो तीनों को जनरलाइज करके आप कैसे कह सकते हो कि तीनों प्रॉपर्टी सभी के लिए ट्रू होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, कुछ के लिए ट्रू नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अगर पूरे प्रोपोजिशन में, मतलब सॉरी, पूरे आर्गुमेंट में एक भी बार अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज हो रहा है तो वहां पे आपको एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन अप्लाई करना है, और अगर ये नहीं यूज हो रहा है तो उस केस में आप यूनिवर्सल जनरलाइजेशन यूज करोगे। ये जनरलाइजेशन जो है वो किस लिए है? प्रोपोजिशन को प्रेडिकेट में कन्वर्ट करने के लिए, और प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए इंस्टेंसिएशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्फरेंस रूल के सभी रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इन्फरेंस रूल लगा लेंगे, और फिर हम वापस से प्रोपोजिशन से प्रेडिकेट में जनरलाइज कर लेंगे। तो इसलिए हमें ये 4 एडिशनल रूल की जरूरत होती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कब प्रोपोजिशन से प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना है या प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना है, बेस्ड ऑन क्वांटिफायर्स। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस से दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक आर्गुमेंट है, ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है। एवरीवन इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। दूसरा सेंटेंस है मार्ला इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, और कंक्लूजन है मार्ला हैज टेकन अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको फॉर्मुलेट करें। ये आर्गुमेंट है जिसमें ये 3 सेंटेंसेज हैं, पहला सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये, और तीसरा सेंटेंस ये 2 प्रीमाइसेज हैं और ये कंक्लूजन है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्गुमेंट में लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सभी प्रीमाइसेज होते हैं, और लास्ट सेंटेंस जो है आपका कंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, अब हमें इस आर्गुमेंट की वैलिडिटी डिटरमाइन करनी है। अब क्योंकि इस आर्गुमेंट में क्वांटिफायर यूज हो रहा है, तो इसलिए हम जो अभी तक करते आ रहे हैं उससे डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो है कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपको डोमेन डिसाइड करना है यहाँ पे कि डोमेन हम क्या लें। ठीक है, तो जो डोमेन है, यहाँ पे जो डोमेन है आप ये ले सकते हो कि X is a student in this discrete mathematics class। ठीक है, X डिनोट स्टूडेंट इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन टेक X टू बी व्हाट, स्टूडेंट इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। ओके, तो लेट मी राइट हियर X डिनोट, जो डोमेन है वो क्या है, तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डीएम क्लास। ठीक है, और हम एक प्रेडिकेट यूज कर रहे हैं क्या कि यस, टेकन अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, लेट अस से सी एक्स डिनोट X has taken a course in कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है, जो आर्गुमेंट है आपका, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था हम लाइन नंबर से करके लिखते हैं, तो पहले हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए हमें? पहला सेंटेंस होगा फॉर ऑल एक्स सी एक्स। ये पहला आर्गुमेंट हो गया। दूसरा सेंटेंस है आपका मार्ला इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास, मतलब इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास ही बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखो आप, अगर आप x को ले रहे हो ये स्टूडेंट इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, तो उस केस में आप इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करोगे? ठीक है,
तो इसलिए हमको इसको एज ए प्रॉपर्टी यानी एज ए प्रेडिकेट यूज करना पड़ेगा कि इट इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लास। ठीक है, ठीक। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, वी कैन नॉट गो बाय दिस वे। अब हम डोमेन जो ले रहे हैं, ये डोमेन हमने चेंज कर लिया, क्योंकि उस केस में हम इसको फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी राइट हियर, हियर इसमें हम x कंसीडर कर रहे हैं, एनी स्टूडेंट या एनी पीपल। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्टूडेंट या एनी पर्सन। ठीक है, अब इसमें एक प्रेडिकेट ले लिया हमने dx के नाम से, या dx डिनोट x is a student in this class, yeah, student in this discrete mathematics class. X is a student in this discrete mathematics class. यहां पे जो x है, x डिनोट अ पर्सन और अ पीपल। अगर आप स्टूडेंट से कंफ्यूज हो रहे हो तो स्टूडेंट ना लिख के आप इसको लिख सकते हो अ पीपल और अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो अब यहां पे dx को हमने एज ए प्रेडिकेट यूज किया है, वेयर ये उस पर्सन की प्रॉपर्टी है कि वो इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, और एक दूसरा प्रेडिकेट हमने यूज कर लिया कि x हैज टेकन अ कोर्स इन, अगेन ये उस पर्सन x की प्रॉपर्टी है कि उसने जो है CS का एक कोर्स लिया है ना। तो यहाँ पे हमने एक और, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, x has taken a course in CS। ठीक है, और x has taken a course in CS। ठीक, तो ये दो प्रेडिकेट हो गए। अब पहला सेंटेंस आपका जो होगा, इसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, तो फॉर ऑल x dx implies, just a minute, तो ये हमने लिख लिया dx implies cx। ये पहला आर्गुमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट हो गया आपका। और दूसरा सेंटेंस आप कैसे लिखोगे इसको, तो दूसरा सेंटेंस है मार्ला इज ए स्टूडेंट इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। तो x को हमने dx लिखा है, तो मार्ला, लेट अस से मार्ला के लिए हमने कैपिटल M वेरिएबल यूज कर लिया, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो d मार्ला। तो x को हमने एक वैल्यू मार्ला से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया ये। और
जो कंक्लूजन है वो है मार्ला हैज टेकन अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो एक्स हैज टेकन अ कंप्यूटर साइंस, कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, ये हमने सी एक्स लिखा है, तो ये हो गया सी मार्ला। एक्स को हमने एक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका गिवन आर्गुमेंट है, जिसकी वैलिडिटी आपको डिटरमाइन करनी है ये। ठीक, तो आप इसमें देख पा रहे हो कि दो तो प्रोपोजिशन है, केवल ये एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को क्वांटिफायर हटाने के लिए, सॉरी, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट से क्वांटिफायर हटाने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? तो इंस्टेंसिएशन यूज करते हैं, क्योंकि फॉर ऑल के लिए ट्रू है, किसी भी पर्सन के लिए ट्रू है। ठीक है, तो इसलिए मार्ला क्या है, वो भी एक पर्सन ही है, तो उसके लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि इस एक्स के डोमेन का एक इंस्टेंस है मार्ला। ठीक, तो इसलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, हियर वी आर। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बताया क्या, कि अगर कोई इंस्टेंस है तब तो वो ऑलरेडी क्या प्रोपोजिशन है, क्योंकि वेरिएबल को जब हम वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो वो प्रोपोजिशन हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ इस वाले सेंटेंस में जो क्वांटिफिकेशन यूज हुआ है वो कौन सा है? यूनिवर्सल। तो इसलिए आप इसको कैसे लिखोगे? लाइन नंबर 1 में पहला प्रीमाइस लिखोगे, लाइन नंबर 2 में आप दूसरा प्रीमाइस लिखोगे, लाइन नंबर 3 में आप लिखोगे, लाइन नंबर 3 में आप लिखोगे, यहां पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लाइन 1 पे, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन वाला। नो नो नो, यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। हम Okay. इंस्टेंस कर रहे हैं ना, जब भी प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस करना होता है। तो हमें एक्स वेरिएबल को मार्ला वैल्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसलिए लाइन 1 पे हमने अप्लाई किया यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा डी मार्ला। मान लो मार्ला को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी कैपिटल एम लीड्स टू सी एम। अब ये प्रेडिकेट नहीं है, नाउ दिस इज अ प्रपोजिशन, क्योंकि यहां पे मार्ला जो है वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट डी एम इंप्लाइज सी एम की जगह हम डी इंप्लाइज सी भी लिख सकते थे, लेकिन जस्ट आपको जो है कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है ना। तो नाउ दिस इज अ प्रोपोजिशन। तो एक प्रोपोजिशन है डी एम इंप्लाइज सी एम, दूसरा प्रोपोजिशन है डी मार्ला। कौन सा रूल लगेगा इन दोनों में? सर किसमें किसमें? यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये आपका है लाइन 2 डी एम, लाइन 3 डी एम इंप्लाइज सी एम, और लाइन 1 था ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, तो लाइन 1 पे हमने यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन लगाया तो हमें ये मिल गया। अब बताओ इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? इन दोनों पे, 2 और 3 पे, मॉडस पोनेंस। मॉडस पोनेंस याद है? मॉडस पोनेंस में क्या था? एक
प्रीमाइस जो है P है, दूसरा प्रीमाइस P implies Q है, तो कंक्लूजन होता है Q। ये मॉडस पोनेंस का रूल है। यहां देखो आप, ये P और P implies Q, therefore Q, यही तो है। तो Yes, sir. इसी रूल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों प्रोपोजिशंस हैं, ये भी प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो लाइन 2 और 3 पे हमने क्या अप्लाई किया, मॉडस पोनेंस, Points. और मॉडस पोनेंस की हेल्प से कंक्लूजन हो जाएगा CM, और यही हमें चाहिए था। Yes, sir. Therefore this is a valid argument। तो दिस इज द वे, क्योंकि यहाँ पे हमने जनरलाइजेशन क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि कंक्लूजन में हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशन है। अगर कंक्लूजन में प्रेडिकेट होता तो हमें जनरलाइज करना पड़ता, फिर से इस प्रोपोजिशन को प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना पड़ता, जिसके लिए हमें यूनिवर्सल जनरलाइजेशन या एक्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन रूल अप्लाई करना होता, ठीक है। तो दिस इज द वे टू अप्लाई इन्फरेंस रूल फॉर द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपका सेम है, केवल चेंज इतना है कि पहले आपको प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर लेना है, जिसके लिए आपको इंस्टेंशिएशन रूल अप्लाई करना है कि यूनिवर्सल होगा या एक्जिस्टेंशियल होगा। जब आपने प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर लिया, तो सेम प्रोसेस यूज करके आप डिफरेंट रूल्स यूज कर लो और उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर लो, और फाइंड आउट करने के बाद अगर कंक्लूजन में हमें प्रेडिकेट चाहिए तो फिर हम जनरलाइजेशन अप्लाई कर लेंगे। तो बीच वाला प्रोसेस सेम रहेगा, केवल स्टार्टिंग में हमें प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना है, और लास्ट में हमें प्रोपोजिशन से प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए इंस्टेंशिएशन और जनरलाइजेशन रूल्स है, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन अप्लाई दिस इन्फरेंस रूल ओवर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस proposition and predicate logic. In next class we will start with group theory. Yes, any queries you can ask. सर हमारा मिड टर्म का रिजल्ट कब तक आएगा? Maybe Wednesday, परसों। और सर एंड टर्म कब होंगे? एंटम डेट बता तो दियो, मेल आपको गया होगा, 23rd से है, 23 दिसंबर। दिसंबर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल।